this is Shifan Sharma welcoming you all to JKC News. So let's start today's English bulletin with the headlines. LG Sinas flags off India Pensak Silat team for Srinagar. Team will participate in the World Championship in Malaysia. Lieutenant Governor Manoj Sinha presides over the review meeting of Housing Department, reviews the works done in the department. DGP Dilbag Singh inaugurates the Women Police Station in Anantnag, said JK Police will never allow the plans of Pakistan to succeed. Celebrations on Draupadi Murmu becoming the new President of India, PM Modi also being appreciated. And Shyamanaji Yatra suspended due to bad weather, no fresh batches sent from base camp Jammu today. Now news in detail. Lieutenant Governor Manoj Sinha flagged off the India Pensak Silat team from Srinagar. Let us tell you that this team will participate in the World Championship in Malaysia. Lieutenant Governor met all the players of the team before leaving and encouraged them to perform well and make the country proud. At the same time, there was also a lot of enthusiasm and excitement seen among the players. Lieutenant Governor Manoj Sinha presided over the review meeting of the Housing Department today. In this meeting, the works of the Housing Department were reviewed and the promotion of the Housing Department was also discussed, while senior officials of the Housing Department were also present in this meeting. DGP, that is Director General of Police Dilbag Singh, inaugurated the Women Police Station in Anantnag today. IG and DIG were also present with him during this. While speaking on the occasion, DGP Dilbag Singh said that Pakistan is trying to use the innocent youth for terrorism through social media, which is a new conspiracy to enhance their network in the valley and to kill the innocent people here. He also said that the police will never allow their plans to succeed and such people will be punished at the earliest. बहुत सारा नुकसान जो हमारे कश्मीर के यूथ को, कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के फैमिलीज को पहुंचाना चाहते हैं, उसका सबसे कारगर जरिया जो अभी तक उन्होंने ढूंढा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। उसके जरिए से इनोसेंट बच्चे जो 16 साल की उम्र, 17 साल की उम्र, इस तरह के बच्चे जो अभी बिल्कुल अनाड़ी हैं, जिनको धर्म की, कर्म की, समाज की अभी पूरी तरह समझ नहीं है, उनको टारगेट करते हैं। और जो जहां पर लोग बैठे हैं, जो उनकी नेटवर्क में शामिल हैं, उनकी भी हमें खबर है। सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सख्ती से कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई को किसी भी सूरत में नरम नहीं किया जाएगा, इसको और सख्त किया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया ने कश्मीर के अवाम को, कश्मीर के यूथ को जो नुकसान पहुंचाया है, जो जिंदगी से मौत तक तब्दील करने का जो सिलसिला, अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे को जो मिलिटेंसी में धकेलने का सिलसिला जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्प्रेड करके पाकिस्तान के हैंडलर्स और एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं, इसको हर तरीके और डे टू डे मुतासर करती है, जाहरी तौर पे मुतासर करती है, इसलिए वो चीज़ फोकस में दिखाई देती है, मगर ऐसा नहीं कि उसके काम के चल निकल जाए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तक जितने भी गुनहगार इस फेसलेस मिलिटेंसी का हिस्सा बने हैं, अंडरग्राउंड मॉड्यूल्स का हिस्सा बने हैं, एक एक करके उनका
एक्सपोजर हुआ है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हुई है। BJP spokesperson Altaf Thakur today congratulated Draupadi Murmu on winning the elections of President of India and expressed happiness for this victory of BJP. Speaking on the occasion, he took a dig at Congress and its allies and said that this is another loss for them, and the way BJP has achieved victory in this elections, it will also win in all the upcoming elections in the same way. की बात है कि एक ट्राइबल वुमेन आज देश की प्रेसिडेंट बनी है, देश की सदर बनती है, जो एनडीए की कैंडिडेट है। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए हमेशा जो प्रतिबंध रही और जो उसने हमेशा वुमेन्स एम्पावरमेंट बात की, आज उन्हें प्रूव करके। और सबसे बड़ी बात है, देखिए एनडीए की किस्मत में जीत लिखी और कांग्रेस और जितनी भी अलायंसेस पार्टीज, चाहे वहाँ उनका यहाँ एनसी हो या कोई और रीजनल पार्टी से, शिकस्त उनका किस्मत बन चुकी है। और आने वाले इलेक्शन में भी यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पूरी बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर पर गवर्नमेंट बनाएगी और जो जितनी भी इतनी अलायंस है कांग्रेस की, जो कांग्रेस की साथवादी पार्टी है, उनको शिकस्त होगी। और ये अब लोगों ने आज भी बता दिया, और पहले भी जैसे कांग्रेस हारती आ रही है, और आज जो राष्ट्रपति का इलेक्शन था इसमें भी कांग्रेस की बहुत जबरदस्त। Similarly, all Jammu Kashmir Gaddi Shippi Association and BJP celebrated in Bhadarwah on Draupadi Murmu becoming the new president of India. During this, sweets were also distributed and they expressed happiness for it and said that they are grateful to PM Modi for electing her as the candidate of President of India. आज बहुत खुशी का मुकाम है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हमारा 15वां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जीत के आई, वो एक जनजाति महिला हैं और ये पूरे जनजाति समाज के लिए बड़ी खुशी का मौका है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जनजाति समाज जो है वो खुशियाँ मना रहा है, चाहे वो गद्दी शिपी हो, चाहे वो गुज्जर बकरवाल हो, चाहे अदर दूसरे हमारे ट्राइब के लोग हों, तो सभी लोग जो बड़ी धूमधाम से खुशी मना रहे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जगह जगह से हमें मुबारकें आ रही हैं। देश में खुशी का माहौल है। मैं तमाम देशवासियों को अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से बधाई देना चाहता हूं। आज हम भदरवा में हैं, भदरवा के शहर में आए हैं। लगातार हर गांव में हम जा रहे हैं। 25 तारीख तक हमने जैसे कांसर है, मंथला है, डंडी है, हडल है, भारई है, अपना वह चिली पिंगल में है, वो ढड़काई एरिया है, गुज्जर बकरवाल, शिपी गद्दी, जहाँ भी रहते हैं वहाँ हम जा रहे हैं। और इन लोगों में इतना जोश है। मैं ऑनरेबल नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा कैंडिडेट हमें दिया और जिससे छोटी जाति के जितने भी लोग हैं वो खुश हुए हैं। The bad weather has hit Shri Amarnath Ji Yatra as well. The yatra from base camp Bhagwati Nagar Jammu has also been suspended on Friday due to the bad weather. The administration is constantly monitoring the weather. Earlier, a batch of 4,703 pilgrims sent from Jammu in the earlier hours of Thursday was stopped at the Yatra Niwas in Chandrakot, Ramban due to the bad weather, due to which the batch has also been seen keeping in mind the safety of the pilgrims. The faith and enthusiasm of the devotees can be seen from the fact that thousands of devotees from all over the country are reaching here in Jammu Kashmir every day due to the favorable weather. Amarnath Yatra would continue through the traditional Baltal and Pahalgam route. So far, about 2 lakh devotees have paid obeisance at the holy cave. मैं कहना चाहती हूँ सबको भोले बाबा का दर्शन हो जाए, बस अमरनाथ का दर्शन हमको शांति से हो जाए। अमरनाथ का दर्शन हमें शांति से हो जाए, बस अच्छे से। हम काल से वहाँ फंसे हैं, गाड़ियाँ चल नहीं रही है, इससे हमारे बच्चे सब अच्छे रहे, सबको अच्छा दर्शन हो जाए। भोले बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन भी सही व्यवहार नहीं कर रहा है हमारे साथ, इधर उधर धक्का लगा रहा है। बाहर जा रहे तो नाश्तों के लिए जाने भी नहीं दे, मना कर रहे हैं। 20 तारीख का था जो वो रोक के रखा है, अभी 22 का था जो वो जाने नहीं दे रहे, रोक रखे। अभी तो 2-3 दिन हो गए, इधर से उधर हो रहा है। अब हम यहाँ समय भी नहीं मिल रहा है, अब क्या करें हम। यहाँ बीच में न खाने पीने की व्यवस्था है, लंगर में हमको ये खाना शूट ही नहीं हो रहा है। यात्रा नहीं रुकी थी, उससे पहले हम लोगों को बहुत टाइम से रोक रखा है। हम लोग यहाँ से 18 तारीख को आए हुए हैं, पर हमको 18 तारीख से आए हुए हैं, हमको फुटबॉल बना रखे हैं। इधर से उधर जाओ, उस खिड़की पे जाओ, उस खिड़की पे टोकन दे रहे हैं, उस खिड़की पे कार्ड बनेंगे, उस खिड़की पे ऐसे बनेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करके हम 18 तारीख से आए हुए हैं। जब से कंटिन्यू चल रही थी यात्रा। आप कभी जीवन में आना ही नहीं, इतनी खतरनाक
ये ऐसी व्यवस्था थोड़ी होती है कि एक बार 18 तारीख को यात्री आया हुआ कंटिन्यू यात्रा चलती तो हम लोग अभी तक नीचे आ जाते। यहाँ हमारे जो दूसरी गाड़ियों वालों का स्टाफ है, बस वाले भी बोल रहे हैं तुम जल्दी करो। अब हम जल्दी कैसे करें? वहाँ पे जाते खिड़की पे, इस खिड़की से फुटबॉल उस खिड़की पे चला जाता, उससे उधर जाओ, 18 तारीख की लेके आना। वहाँ स्टाफ धक्के दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार की जबरदस्ती मीडिया पे और वाहवाही ले रहे हैं कि हम बहुत अच्छी यात्रा करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं यात्रा? क्या है, कौन सी यात्रा करवा रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा है। टोटल यात्री परेशान पड़ा, टोटल यात्री परेशान है। हमारे यात्रियों के डंडे से मार रहे हैं उधर, वो पुलिस स्टाफ का भी उधर व्यवहार कोई सही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या मांग करोगे? प्रशासन से मांग ये करेंगे कि अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी इससे भी अच्छी होना चाहिए, पर यात्री के साथ सरल व्यवहार होना चाहिए और जल्दी से जल्दी यात्री परेशान नहीं होना चाहिए। और यात्रियों का कोई भीड़ नहीं है, भीड़ इन लोगों ने खुद नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने भीड़ बना रखा है। बहुत अच्छा है और दर्शन करके निकलेंगे। हमारा विचार है कि वापस चले जाएं, लेकिन हम नहीं जाएंगे, दर्शन करके ही निकलेंगे, चाहे और एक आध दिन और लग जाए। व्यवस्था कुछ भी नहीं है, फिर भी मतलब 40% सही है। परेशानी क्या है, रही जगह ही नहीं है। फिर इसके बाद हम कहीं अंदर गए थे और वहाँ फिर रुके थे और ये मिलिट्री वाले कोई सही ढंग से जवाब भी नहीं देते हैं। Smart Village Revolution was inaugurated by Asim Foundation at Kunan Poshpura, Kupwara. With the joint efforts of Vajra Division and Asim Foundation Pune, Kunan Poshpura has become the first smart village with this special project that will bridge the gap between the government portals, government employees and an ordinary local resident. It was also told that as the village is now smart, so the people here will also get free Wi-Fi services so that they can be able to do all their works. और बाकी यहाँ सारे ऑफिसर्स जो हैं, आप सबको प्रति जय हिंद। इसके अंदर आपने देखा कि आप अपने जिससे आप मतलब स्काई इज द लिमिट कहते हैं, जो आप एक्सेस करना चाहते हैं, इस चीज़ को आप देखना चाहते हैं। कई बार होता है कि हम लोगों को आपस अपने गांव में ही हम कुछ प्रोग्राम करते हैं या मैं कुछ अपना क्रिकेट मैच खेल के आया और क्रिकेट में Aam Aadmi Party's youth wing today condemned the misbehavior done by the police towards the students who were protesting at Jammu University yesterday. For their demands, during a press conference, youth leader of Aam Aadmi Party condemned such action of the police. He said that the police misbehaved with the students, they were dragged and the clothes of many students were also torn, which is totally wrong and condemnable. He condemned the police and demanded action in this matter. आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस विषय पर रखी गई है कि पूरे जम्मू वासियों को पता है कि कल जो बर्बरता, जो शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर की वर्दी वालों ने, पुलिस वालों ने वहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर जो स्टूडेंट्स को मैन हैंडल किया गया, वह शर्मनाक बात है। आप देखें कि कैसे जो बच्चे जेबों में पेन और हाथ में किताबें लेकर जम्मू विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, वो अपनी मांग अपने वाइस चांसलर के आगे रखते हैं, तो जम्मू कश्मीर पुलिस, जिनकी कोई जुरिस्डिक्शन, जिनका कोई अधिकार जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आने का नहीं बनता, वो शरेआम धड़ल्ले से अंदर आते हैं। और वह स्टूडेंट्स जो अपनी डिमांड अपने वाइस चांसलर से कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस से नहीं कर रहे, उनको मैन हैंडल किया जाता है। लड़कियों को वहां पर घसीटा जाता है, बुरी तरह से गाड़ियों में घसीटा जाता है, जबकि वहां पर लड़कियों के कपड़े फट जाते हैं। इस विषय पर कल सभी स्टूडेंट एक्टिविस्ट ने, सभी कार्यकर्ताओं ने वहां पर मीडिया के आगे इस विषय की निंदा की, पर कल पुलिस फिर बाज नहीं आती है और जम्मू कश्मीर पुलिस के विक्रम चौक के चौकी अफसर जो है शरेआम वहां पर जम्मू यूनिवर्सिटी गेट के बाहर एक बच्चे को मैन हैंडल कर रहे हैं, बुरी तरह उसकी गर्दन दबा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारियों से, क्या जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को वर्दी क्या स्टूडेंट्स पर, निहत्थे स्टूडेंट्स पर अत्याचार करने के लिए मिली है? क्या स्टूडेंट्स अपनी जेबों में आरडीएक्स लेकर घूम रहे हैं, जो आप इनकी गर्दनें पकड़ पकड़ कर इनको घसीट घसीट के अंदर अपने घुसा रहे हैं थानों के अंदर? जो लोग टारगेट किलिंग्स पर चुप है, ये हमारे सियासतदान, ये जम्मू कश्मीर की पुलिस के जो जवान, जो इनसे वो लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं, पर स्टूडेंट्स अपने डेमोक्रेटिक राइट को अगर है वो शरेआम अपने वाइस चांसलर से, प्रोफेसरों से मांग कर रहे हैं स्टूडेंट अपने अधिकारों के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस आकर वहां पे मैन हैंडल कर स्टूडेंट्स को क्यों करे? कल के वाकये की जो है शर्मनाक वाकया है, उस घटना की हम निंदा करते हैं। उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, उस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए जिसको कल जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी मैन हैंडल कर रहे हैं, बर्बरता दिखा रहे हैं। क्या ये वर्दी इनको अपनी बर्बरता ये स्टूडेंट्स के ऊपर दिखाने के लिए मिली है? जल्द अज जल्द इसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो सभी जो हमें छात्र संगठन कार्यकर्ता जितने भी हैं, सभी छात्र संगठनों के एक स्टेज पर आकर इसका विरोध करेंगे और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के उस अधिकारी को भारी पड़ जाएगा।
क्या क्या डिमांड क्या करना चाहिए पुलिस सर, हमारे मुख्य जम्मू कश्मीर का पूर्व पुलिस अधिकारी उन छात्र जो है नेताओं से जिनको कल मैन हैंडल किया गया उनसे माफ़ी मांगे। वो किसी भी पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग रखते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये आत्मा को झकझोर देने वाली बात है कि कैसे निहत्थे स्टूडेंट्स को, कम उम्र के स्टूडेंट्स को वहाँ पर मारा जाता है, इतनी बर्बरता दिखाई जाती है। क्या हमारी आत्मा मर चुकी है? क्या हम क्रिमिनल्स हैं जो पुलिस इतनी बर्बरता हमसे दिखाएगी? The High Court Bar Association protested today in favor of their demands. During this, the association president M.K. Bharadwaj said that they have some issues regarding which they have also met Lieutenant Governor some time ago. But even after so much time, their genuine demands have not been considered yet, due to which today they have come to the streets. He said that at this time, when physical hearing is going on everywhere, the Central Administrative Tribunal Court is still proceeding online. The protesters demanded to look all into these matters. नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी, लेके रहेंगे अपना हक। के लोग बैठ करके कल भी काम पर सस्पेंड रहेगा, कल हमारी बात धरना रहेगा हमारे वहाँ कोर्ट प्रिंसिस में। उसके बाद आगे का जो प्रोग्राम है वो हम सभी लोगों को हमेशा इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती आ रही है। आप बार की हिस्ट्री को देखिए, वो चाहे टाइमिंग का इशू हो, चाहे दरबार मूव का इशू हो, चाहे जम्मू सूबे के साथ रीजनल जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी वो इशू हो, हर एक इशू पे जम्मू के लोगों ने यूनाइटेडली बार एसोसिएशन के साथ मिलजुल करके एजिटेशंस की है और जितनी एजिटेशंस हमने बार ने की है सारी की सारी एजिटेशंस हमने जीती है। आज हमारी जो लड़ाई है वो बड़ी सिंपल है। हमने रिपीटेडली इन राइटिंग और ओरली जो भी हमारे यहाँ के डेलीगेशंस मिले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमने उनको ये बात कही है कि हमारे पास यहाँ हाई कोर्ट प्रिंसिस में बहुत सी जगह है, आप आराम से एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाइए। अगर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स अच्छा सा बन जाता है हमारे इस कोर्ट प्रिंसिस में, उसमें सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन वर्क हमारी कोर्ट प्रिंसिस से बाहर गया है, आज भी बुकला साहिबान को और जनरल पब्लिक को परेशानियां हो रही हैं, वो वापस आ जाएगा। हमने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के मिनिमम 5 बेंच होने चाहिए। आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आज की डेट में जहां वो लोग बैठते हैं वहां जाके प्रेस वाले भी उसको देखें, वहां तो एक बेंच भी कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता, वहां बहस नहीं की जा सकती, इसलिए वो लोग ऑनलाइन काम आज भी कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आप जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओगे, रजिस्ट्रेशन वर्क वहां आ जाएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वहां आ जाएगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की बात इनिशियली चलती आ रही है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यहाँ बन जाएगा। जितने कंज्यूमर्स हैं, जितने ट्रिब्यूनल्स हैं, स्पेशल ट्रिब्यूनल है, वो भी यहाँ बन जाएगा, तो बुकला साहिबान और जनरल पब्लिक को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं प्रेस के मीडियम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे हमारी मुंसिफ के कोर्ट्स हो, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, हर एक कॉम्प्लेक्स में, चाहे वो सांबा हो, कठुआ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, रामबन हो, भदरवा हो, किश्तवाड़ हो, हमारे जम्मू सूबे के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये सारे के सारे जितनी भी हमारी जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल जितनी भी फोरम्स हैं वो सारी वहीं पे सिचुएटेड रहनी चाहिए, ताकि लोगों को किसी किस्म की कोर्ट प्रिंसिस के अंदर दिक्कत ना आए। The demonstration of Kashmiri Pandits working in Kashmir continued for the 72nd day. Today, the protesters expressed their anger by raising slogans and said that after the target killings in the valley, they feel insecure there and do not want to go back to the valley. They demanded the government to transfer them to their home districts and want to continue the demonstration if the demand is not fulfilled. Justice! We want justice! We want justice! कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो हमारे हिंदुओं के लिए वहाँ सेफ है, कोई ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसे किलिंग्स हुई, ऑफिस में किलिंग हो रही है, स्कूलों में किलिंग्स हो रही है, तो हमारे पास क्या गारंटी है कि हम लोग वहाँ जाए और हमें मारा नहीं जाएगा, नेक्स्ट मैं नहीं होगा, नेक्स्ट डे नहीं होगा। जैसे ये आपको पता है कि क्या हुआ था, किस बेसिस पे वो हमें बोल रहे हैं कि आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे। पार्लियामेंट पैकेज मैं वैली में 2010 से काम कर रहा हूं
आज हमारे प्रोटेस्ट का 72 डे है। ये प्रोटेस्ट 12 मई को जब राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई है उसके बाद शुरू हुई है और हमारी एक ही 1 पॉइंट डिमांड है और वो डिमांड ये है कि हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी पैकेज और नॉन पैकेज एम्प्लॉय जिसमें कश्मीरी पंडित यूथ वैली में काम कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस जम्मू में अटैच करके एक कमेटी फ्रेम की जाए जो कमेटी एम्प्लॉयज़ के साथ बात करे ताकि जो एम्प्लॉयज़ का जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है वो सरकार समझे। हम अपनी पक्ष को रखना चाहते हैं और सरकार की बात भी सुनना चाहते हैं और उसके बाद एक जो सोल्यूशन है एमिकेबल सोल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फैक्ट्री होगा वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम डीडीओज़ को ये अपील करते हैं कि वो किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर मोड प्रेशर न करे, चाहे वो रिटर्न हो या वर्बल हो, क्योंकि उनको समझना है ये एम्प्लॉय के सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। दूसरी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है उसको बंद नहीं किया जाए क्योंकि कश्मीरी पंडित यूथ के पास सिर्फ एक ही इनकम है, वो है सैलरी की इनकम। अगर आप सैलरी की इनको बंद कर रहे हैं तो उनकी फैमिली जो सफर होगी उसके लिए वो डीडीओ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। इसलिए हमारी लास्ट में फिर से एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है हमारे साथ बातचीत किया जाए, तब तक जो अटैचमेंट है वो कश्मीर पंडित यूथ को वैली में। A press conference was organized today by Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad on various issues of the students. Speaking on the occasion, the members of ABVP highlighted the problems faced by the students. They said that there is a shortage of teachers in many colleges due to which the students are facing problems. He also highlighted other issues and demanded the government to pay attention to all these. जिस प्रकार से जम्मू डिवीज़न के अंदर चाहे वो जम्मू विश्वविद्यालय के एफिलेटेड कॉलेजेस हों, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के एफिलेटेड कॉलेजेस हों, हर वर्ष हायर एजुकेशन जो है वो 800 से ज़्यादा एकेडमिक अरेंजमेंट के फैकल्टी को अपॉइंट करता है, परंतु इस वर्ष अभी तक जो केवल 650 जो गेस्ट फैकल्टी को अपॉइंट किया गया है, जिसके कारण वर्ष स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से सफ़र कर रही है। आज हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहां बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए बॉटनी के टीचर को जाना पड़ रहा है, जहां फिजिक्स पढ़ाने के लिए केमिस्ट्री के टीचर को जाना पड़ रहा है। जिस प्रकार से यह चीज़ें हुई हैं जिसके कारण वर्ष जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे वो कॉलेजेस जम्मू विश्वविद्यालय के कॉलेजेस हो, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के कॉलेजेस हो, उनकी पूरी शिक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा और स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है पूरी तरह प्रभावित हुई है, जिसके कारणवश जम्मू के अंदर जो है एक 6 महीने सेमेस्टर लेट चल रहा है। जहां देश भर के अंदर इस समय ग्रेजुएशन करके विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं, उसका एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, परंतु जम्मू के अंदर अभी जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक 6 सेमेस्टर जो है वो जुलाई महीने से शुरू हुआ है। विद्यार्थी परिषद यह जम्मू कश्मीर की सरकार से हायर एजुकेशन से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन उनसे यह मांग करती है कि एकेडमिक अरेंजमेंट जो फैकल्टी का वो 800 से ज़्यादा जो हर वर्ष होता है उनको किया जाए, इस वर्ष भी किया जाए। और कब तक हम लोग जो एकेडमिक अरेंजमेंट करते रहेंगे? विद्यार्थी परिषद का यह भी मानना है कि साथ में और हम लोग ये मांग करते हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार से यह मांग करते हैं कि परमानेंट अपॉइंटमेंट जो है सभी असिस्टेंट प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर का जो है कॉलेजेस के अंदर होना चाहिए, जिससे हमारी शिक्षा की गुणवत्ता भी रहेगी और सुचारू रूप से हमारी शिक्षा भी कैंपसेस के अंदर होती रहेगी। Ahead of 76th Independence Day, the Indian Army organized a painting competition in Baramulla to shape the talent and creative imagination of the children. Let us inform you that more than 150 children of different age groups from different regions of Baramulla participated in the competition. At the same time, the enthusiasm, creativity and patriotism of the children added to the charm of the program during the competition. In the end, the poster colors and brushes were also presented to all the children who participated in this competition. मैं 46 RR का स्पेशली ब्रिगेडियर नेगी साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने ऐसे कंपटीशन का इनेकाद यहाँ पे कराया, खासकर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को टैलेंट को एक्सप्लोर करने का एक मौका यहाँ पे दिया गया उनको। उन्होंने अपने टैलेंट को एक्सप्लोर किया, उनके लिए प्राइजेस रखे गए जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। मैं चाहता हूँ इन कमिंग डेज आर्मी ऐसे इनिशिएटिव्स और ले ले, फोर फ्रंट पे आ जाए, बच्चों के उस टैलेंट को निखारने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करें ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो बिछड़े हुए हैं या हालात की वजह से, तो जिनकी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो पाई पिछले 3 साल से डिस्टर्बेंस की वजह से, वो स्कूल से डिटैच रहे, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे प्रोग्राम्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ कराए जाएं। खासकर आर्मी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, वो अगर हर लेवल पे, हर हल्का लेवल पे स्पेशली ऐसे प्रोग्राम कराते हैं तो
बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मतलब हमें मतलब 3 साल के बाद वापस से मतलब अपना मतलब दिखाने का मतलब मौका मिल रहा है। मतलब जितना कुछ हम मतलब कर सकते थे वो हमने किया। मतलब ऐसे भी कोई स्टूडेंट है जो अपनी मतलब कलाकारी दिखाना चाहते थे, जिन्होंने यहाँ पे दिखाई। मतलब मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मतलब हमें वापस से मौका दिया कि हम वापस से मतलब अपनी कलाकारी दिखाएं। आई एम सो थैंकफुल ऑफ द इंडियन आर्मी। मेरा बैच निश्चित था, हमें बड़ा मज़ा आया करने में। वहाँ बहुत स्कूल के बच्चे भी आए थे, उन्होंने अपना बैच दिया और हमने भी अपना बैच। देखते हैं अब क्या होता है आगे। बड़ा सही बनाया है, पता नहीं, होप सो, लेकिन हो सकता है तो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम हाँ होने चाहिए। पिछली बार भी ऐसा हुआ था और इस बार भी फिर से यहाँ पर हुआ है, लेकिन जो कोविड बीच में आ गया तो उसकी वजह से बहुत सारा हम डिस्टर्ब हो गए थे घर बैठ के, लेकिन अब यहाँ पर आके हम बहुत ही खुश फील करते हैं और हैप्पी फील करते हैं। खुश हूँ कि मतलब मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया। मैं चाहती थी कि बाकी सब भी स्टूडेंट्स का भी अच्छा मतलब मेरे से रहे। मेरे को ये भी नहीं था पता कि मैं मतलब फर्स्ट प्राइज़ लूँगी, कि मैंने मतलब पेंटिंग, मतलब मेरी पेंटिंग के साथ कोई वास्ता ही नहीं है, मैं पेंटिंग करती भी नहीं हूँ। आज फर्स्ट टाइम पेंटिंग की और मतलब पेंटिंग में ये हुआ। लाइक मैं थैंक्स टू इंडियन आर्मी की, मतलब उनने मेरी पेंटिंग सेलेक्ट की फॉर फर्स्ट पोजीशन। पोजीशन डज नॉट मैटर, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए हर एक चीज़ में। So that's all in today's English Bulletin. Thanks for watching JKC News and stay tuned for more updates.